کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سامنے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے کبھی ہم نے خود چھوڑ دیا تھا، لیکن آج اس کی جان بچانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ سوچیے اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اپنے ماضی سے بھاگ جائیں گے یا محبت کی آخری سانس تک اس کے لیے لڑتے رہیں گے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو کبھی ایک لڑکے کی پوری دنیا ہوا کرتی تھی۔ وقت بدلا، حالات بدلے، وہ لڑکی اب ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکی تھی، لیکن جب آپریشن روم میں اس کے سامنے وہ شخص آیا جسے کبھی اس نے خود چھوڑا تھا، جو اب اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، تو اس کی جان بچانا اب اسی کے ہاتھ میں تھا۔ کیا وہ اسے بچا پائے گی؟ کیا محبت پھر سے زندہ ہوگی یا اس بار بھی قسمت دونوں کا ساتھ چھوڑ دے گی؟ یہ کہانی پاکستان کے شہر لاہور کے، جہاں ڈاکٹر عالیہ، جس نے اپنے خون پسینے سے ہارٹ سرجن بننے کا خواب پورا کیا تھا اور ہر مریض کو بچانا اپنی زندگی کا مقصد مانتی تھی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن اس کے ہاتھوں میں صرف کسی کی جان نہیں بلکہ اس کا اپنا ادھورا پیار بھی آ جائے گا۔ اس دن جب عالیہ اپنے میکے میں تھی تو سر میں شدید درد اور دل میں عجیب سی بے چینی تھی، کیونکہ اسی صبح اس نے اپنے گاؤں کے پرانے پارک میں اپنے بچپن کا دوست، اپنا پہلا پیار احمد دیکھا تھا۔ لیکن وہ احمد اب وہی معصوم ہنستا کھیلتا لڑکا نہیں رہا تھا، وہ اب ایک ٹوٹا ہوا برباد انسان بن چکا تھا۔ بڑی ہوئی داڑھی، میلے کپڑے، شراب کی بدبو اور سوجی ہوئی آنکھیں، اور وہ بیٹھا بھی اسی بینچ پر تھا جہاں کبھی دونوں گھنٹوں ہنستے، لڑتے اور محبت کی قسمیں کھاتے تھے۔ عالیہ کا دل اسی لمحے سے بوجھل سا ہو گیا تھا، وہ خود کو مسلسل کوس رہی تھی۔ اگر میں اسے چھوڑ کر نہ جاتی، اگر میں اس کے ساتھ رہی ہوتی تو شاید آج وہ اس حال میں نہ ہوتا۔ تبھی اس کے شوہر ڈاکٹر حمزہ کا فون آیا۔ اس نے بس ایک جملہ کہا، عالیہ ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، پیشنٹ تمہارے گاؤں کا ہے، نام ہے احمد، حالت بہت نازک ہے، تمہیں فوراً آنا ہوگا۔ جیسے ہی عالیہ نے احمد کا نام سنا، اس کی سانسیں رک گئیں، اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا، آنکھیں پھٹی رہ گئی، اندر سے ایک چیخ نکلی، کیا یہ وہی احمد ہے؟ کیا وہ اب موت سے لڑ رہا ہے؟ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے گاڑی نکالی اور اسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے بھر اس کے ذہن میں صرف ایک سوال گونجتا رہا، کیا میں اسے بچا پاؤں گی؟ کیا قسمت مجھے ایک اور موقع دے رہی ہے؟ جب عالیہ اسپتال پہنچی تو ایمرجنسی وارڈ میں وہی چہرہ، وہی منظر سامنے تھا جسے وہ کبھی بلا نہیں پائی تھی۔ اسٹریچر پر لیٹا ہوا احمد، آکسیجن ماسک پہنے، جسم بے جان، آنکھیں بند، لیکن چہرہ وہی احمد۔ کچھ لمحوں کے لیے عالیہ وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ پائی۔ تبھی ڈاکٹر حمزہ اس کے قریب آیا اور بولا، عالیہ اس مریض کو بچانا بہت ضروری ہے، شراب نے اس کے دل کو بری طرح سے توڑ دیا ہے، تمہیں ہی اسے آپریٹ کرنا ہوگا۔ عالیہ کا دل اندر سے چیخ پڑا، میں کیسے کروں؟ میں کیسے اس انسان کو آپریٹ کروں جسے میں نے کبھی اپنی جان سے بھی زیادہ چاہا تھا؟ آج اس کی جان میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن عالیہ ایک ڈاکٹر تھی، اس نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، میں کروں گی آپریشن۔ وہ آپریشن روم میں گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دستانے پہنتے وقت اس کی انگلیاں بھی لرز رہی تھی، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ہر دھڑکن احمد کی یاد دلا رہی ہو۔ اس نے آپریشن شروع کیا، لیکن ہر کٹ، ہر ٹانکے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، وہ خود سے لڑ رہی تھی، احمد تم نے خود کو اس حال میں کیوں پہنچا لیا؟ کیوں اپنی زندگی برباد کر لی؟ کیوں میری محبت کو اپنی کمزوری بنا لیا؟ ہر لمحہ جیسے صدیوں کے برابر بھاری لگ رہا تھا۔ عالیہ احمد کی سانسوں کے لیے لڑ رہی تھی، ہر ایک ٹانکا اس کے اپنے دل کا درد بن چکا تھا۔ آپریشن ختم ہوا، مگر عالیہ جانتی تھی کہ اب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آپریشن روم سے باہر نکلی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھیں لال تھیں، سانسیں بھاری۔ باہر احمد کی ماں بیٹھی تھی، جس کے بال اب پورے سفید ہو چکے تھے، مگر آنکھوں میں ابھی بھی بیٹے کے لیے وہی ماں والی امید جگمگا رہی تھی۔ عالیہ اس کے پاس گئی اور کانپتی آواز میں بولی، ماں جی، یہ احمد کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس نے خود کو اس حال میں کیوں ڈال لیا؟ ماں روتے ہوئے بولی، بیٹی، جب سے اسکول ختم ہوا تم اچانک پڑھائی کے لیے شہر چلی گئی، اسی دن سے ہی یہ بدل گیا۔ وہ گلیوں میں بھٹکتا رہا، شراب میں ڈوبتا رہا، جیسے اس کی دنیا میں صرف تم تک ہی محدود تھی۔ عالیہ ماں کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی، دل میں ایسے لگا جیسے ہزاروں چھریاں ایک ساتھ چبھ گئی ہوں۔ میں ہی وجہ تھی، میں نے ہی اسے اس حال میں پہنچا دیا۔ اتنے میں آپریشن روم سے اسٹاف دوڑتا ہوا آیا اور بولا، ڈاکٹر، مریض کی حالت پھر سے بگڑ رہی ہے، جلدی آئیے۔ عالیہ کا دل پھر سے دہل گیا، وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے دوڑ پڑی۔
अपने अधूरे प्यार को बचाने के लिए आलिया ऑपरेशन रूम की तरफ ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसके कदम ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे उसकी हर सांस अब सिर्फ अहमद की जान से जुड़ चुकी थी, जैसे वक्त ने कह दिया हो अगर अब भी देर हुई तो ये मोहब्बत यहीं दम तोड़ देगी। ऑपरेशन रूम में पहुंचते मशीनें तेज़ आवाज़ में बीप देने लगी। हर आवाज़ उसकी रूह को हिला रही थी, हर आवाज़ उसे याद दिला रही थी कि वक्त बहुत कम है। अहमद की नब्ज़ कमज़ोर होती जा रही थी। मॉनिटर पर दिल की छोटी छोटी लहरें मदम पड़ चुकी थीं, जैसे मौत अब बस एक कदम की दूरी पर थी। आली ने आंसू पूछे, खुद को संभाला, दस्ताने दोबारा पहने, पूरी हिम्मत से अहमद की सांसों के लिए जंग शुरू कर दी। अब वो सिर्फ अपने पेशे के लिए नहीं लड़ रही थी, वो अपने बचपन के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी अधूरी कहानी के लिए लड़ रही थी। हर कट, हर टांका, हर दुआ आलिया के आंसू में भीगती जा रही थी। वो आंसू में भीग रही थी मगर उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। उसकी आंखों में बार बार वो बचपन का अहमद घूम रहा था। स्कूल के यूनिफॉर्म में मासूम मुस्कान के साथ जब वो कहा करता था, आलिया हम हमेशा साथ रहेंगे। आलिया आहिस्तगी से बुदबुदाई, अहमद तुमने कहा था ना हम साथ जिएंगे और मरेंगे भी साथ, तो आज मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ऑपरेशन रूम का सारा अमला दौड़ रहा था, नर्सें घबरा गई थी मगर आलिया अकेली खड़ी थी, जैसे उसकी हिम्मत अब मौत से भी बड़ी बन चुकी हो। करीब आधा घंटा आलिया मुसलसल अहमद की जान बचाने के लिए लड़ती रही मगर वक्त ने उसकी एक ना सुनी। मॉनिटर की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, नब्ज़ मज़ीद कमज़ोर हो गई और अचानक मॉनिटर पर सीधी लाइन आ गई, एकदम सतही मौत की सीधी लकीरें। आलिया चीखी, नहीं अहमद तुम नहीं जा सकते, तुमने मुझे वायदा किया था, उठो मेरी आवाज़ सुनो, मैं यही हूँ, तुम्हारी आलिया यही है। वो दौड़कर उसके सीने पर दिल दबाने लगी, जैसे उसकी रूह अभी भी कह रही हो कि मौजज़ा हो जाएगा, जैसे उसकी हर दिल की धड़कन अहमद की सांसें वापस खींच लाना चाहती हो। अहमद मत जाओ, देखो मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ, अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, उठो अहमद मेरी आवाज़ सुनो। पूरा अमला आलिया को रोकने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है, कहा गया, मगर आलिया बार बार दिल दबाती रही, बार बार चीख रही थी, अहमद तुमने कहा था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। आखिरकार मशीनें बंद कर दी गईं, डॉक्टरों ने सर झुका लिया, ऑपरेशन रूम खामोश हो गया और वहाँ सिर्फ आलिया के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। वो फर्श पर बैठ गई, जैसे उसके जिस्म से सारी क़ुव्वत निकल गई हो, जैसे उसकी रूह भी अहमद के साथ चली गई हो। उसकी आंखें अहमद की बंद आंखों को देखती रहीं। यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोगों की जानें बचाने के लिए वो डॉक्टर बनी थी, आज अपना ही प्यार उसके हाथों से फिसल गया। वो बहुत देर तक इसी तरह बैठी रही, जैसे उसकी सांसें भी रुक गई हों। थोड़ी देर बाद एक नर्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मैम आप बाहर चलेंगी तो बेहतर होगा। आलिया उठने की कोशिश की मगर उसका चलना अधूरा था, उसकी रूह जैसे टूट चुकी थी। वो ऑपरेशन रूम से बाहर आई तो सामने अहमद की माँ बैठी हुई थी, जैसे माँ अभी अभी अल्लाह से मिन्नतें कर रही हो, मेरे बेटे को बचा लो। आलिया उसके पास गई, उसकी आवाज़ अभी भी गले में अटकी थी मगर किसी तरह हिम्मत करके वो धीमी सी कह पाई, माँ जी मैंने बहुत कोशिश की। फिर उसके अल्फाज रुक गए, आंसू खुद सब कह गए। वो उसी जगह फर्श पर गिर कर रोने लगी, मेरा अहमद, मेरा बेटा चला गया। पूरा अस्पताल उस माँ की चीखों से गूंज उठा। आलिया बस यही दोहराती रही, माँ जी मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, मैंने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया था। मगर किस्मत आलिया की सुनने को तैयार नहीं थी। वो आहिस्तगी से उठकर अपने घर पहुंच गई। जब आलिया घर पहुंची तो जैसे उसके कदम खुद को खींचते हुए आ रहे थे। दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद किया और बगैर किसी से कुछ कहे वो सीधा अपने कमरे में चली गई, जैसे अब उस दुनिया से जुदा हो चुकी हो, जैसे उसके पास कोई सवाल ना रहा हो, कोई जवाब ना रहा हो, बस एक अधूरी मोहब्बत थी जो अब कभी पूरी नहीं हो सकती थी। वो कमरे के फर्श पर बैठ गई, दीवार से सर टेक कर खुद से बड़बड़ाने लगी, क्यों अहमद, क्यों कर लिया तुमने ये सब कुछ, क्यों खुद को बर्बाद क्यों कर लिया, मेरी मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी क्यों बना लिया। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे। उसने सर घुटनों में छुपा लिया, जैसे अपने ही बोझ तले दब गई हो और अपने बचपन की यादों में खो गई। तुम्हें याद है ना अहमद, जब हम स्कूल जाते थे, जब हम खेतों के रास्ते से हंसते हुए स्कूल पहुंचते थे, जब तुम्हारे बैग में मेरी पानी की बोतल होती थी, जब मैं तुम्हारे टिफ़िन से रोटी चुराती थी और तुम कहते थे कि हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। आलिया की आंखों के सामने वो हर छोटी छोटी बात घूम रही थी। जब वो बैठकर घंटों बातें करते थे, जब अहमद कहता था अगर तुम कभी मुझसे दूर चली जाओ तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा,
मगर आज अहमद खुद ही इतना दूर चला गया था जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। आलिया ने कांपते हाथों से अलमारी खोली। उसमें एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसमें उसने अहमद के साथ अपने स्कूल की तस्वीर रखी हुई थी। दोनों स्कूल की यूनिफॉर्म में मासूम चेहरे, हंसती हुई आंखें। आलिया ने वो तस्वीर सीने से लगा ली और बस फूट फूट कर रोने लगी। क्यों अहमद, क्यों मुझे ऐसे छोड़कर चले गए? उसी वक्त दरवाजे पर आहिस्ता दस्तक हुई। डॉक्टर हमजा घर आ चुका था। उसने नरम अंदाज में दरवाज़ा खटखटाया। आलिया, दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ तुम्हें? आलिया ने आस्तगी से दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा गमगीन था, आंखें लाल थीं, उसकी रूह कहीं खो चुकी थी। हमजा ने फिक्रमंदी से पूछा, आलिया क्या हुआ? बताओ ना, आखिर क्या बात है? आलिया फूट फूट कर रोने लगी और कांपती आवाज़ में बोली, वो मरीज़ जिसे तुमने मुझे ऑपरेट करने को कहा था वो कोई और नहीं था, वो मेरा बचपन का दोस्त था, मेरा पहला प्यार था। हमजा चौंक गया, जैसे उसने कभी ऐसा सोचा ही न था। आलिया रोते हुए बोली, हम दोनों स्कूल एक साथ जाते थे, साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, मगर किस्मत ने मुझे बाहर भेज दिया। मैं चली गई और वो टूट गया। मैंने उसे छोड़कर आगे बढ़ लिया, मगर वो खुद से भी दूर चला गया। हमजा थोड़ी देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, आलिया, मोहब्बत कभी गलत नहीं होती, मगर मोहब्बत में खुद को बर्बाद कर देना भी दुरुस्त नहीं होता। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता तो तुम्हारे लिए खुद को संभालता, तुम्हारी याद में खुद को ख़त्म कर देता। मोहब्बत नहीं जो उसकी हार है। आलिया कांपते हुए बोली, मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, मगर वो मुझसे भी हार गया, खुद से हार गया। हमजा ने आलिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब खुद को मिटाओ मत। जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे साथ है उसे खो मत देना। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में उसकी जगह हमेशा रहेगी, लेकिन तुम्हारा आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हमसफ़र हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ। आलिया फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसकी रूह खुद से सवाल कर रही हो, क्या मैं खुद को कभी माफ़ कर पाऊँगी? उस रात आलिया बहुत देर तक खिड़की के पास बैठी रही, जैसे वो आसमान के तारों में अहमद को ढूंढ रही थी। जैसे वो जानती थी कि अहमद कहीं से उसे देख रहा होगा, शायद मुस्कुरा भी रहा होगा। आलिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अहमद, तुम्हें मुझसे बिछड़ने का हक तो था, लेकिन खुद से बिछड़ने का हक तुम्हारे पास नहीं था। तुमने खुद को नहीं मारा, तुमने हमारी मोहब्बत को मारा है। लेकिन आज मैं तुम्हारी कहानी यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तुम्हारी यादें मेरे दिल में रहेंगी, लेकिन अब मैं अपने रास्ते पर चलूँगी। तुम्हें अब दुआओं में छोड़ती हूँ। अलविदा अहमद। कुछ दिनों बाद आलिया इसी पार्क में गई, इसी बेंच पर बैठी जहाँ आखिरी बार अहमद बैठा था। उसने अपनी और अहमद की तस्वीर उस बेंच पर रख दी, जैसे उसने अपनी माजी को वहीं छोड़ दिया हो। आलिया मुस्कुराते हुए वहाँ से चलेगी। हाँ, उसकी मुस्कुराहट अब भी थोड़ी भारी थी, लेकिन अब वो बोझ नहीं थी। अब वो आगे बढ़ चुकी थी, अपने शोर के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ और खुद के साथ। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि दोस्तों, किसी के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अगर मोहब्बत में बिछड़ भी जाओ तो खुद को बर्बाद मत करना, क्योंकि मोहब्बत कभी खुद को मिटाने का नाम नहीं होता। मोहब्बत तो खुद को संवारने का नाम होता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा अधूरा प्यार हुआ है? क्या आप भी कभी किसी की याद में खुद को खो बैठे थे? आपका क्या मानना है? मोहब्बत के लिए खुद को बर्बाद करना सही है या खुद को संभाल के आगे बढ़ना? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब किसी की ज़िंदगी बखेरने से बचा सकता है। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।